Dr. Samiran Panda, Head of Epidemiology and Communicable Diseases Division with the Indian Council of Medical Research, ICMR कहते हैं जिसे. Dr. Panda, thank you so much आज हमारे साथ होने के लिए. Thank you. I can imagine आप कितने busy हैं, and at the same time I can imagine आप कितने खुश हैं. हाँ, such a relief. जैसे ये disease. Indeed. जी, जैसे ही इस वायरस के बारे में पता चला, फिर पैंडेमिक हो गया, we realized the only one thing that we were talking about is vaccine. और बताया जा रहा था कि वैक्सीन के लिए थोड़ा वक्त भी लग जाएगा. बट डू यू थिंक कि फेयरली क्विकली, मोर और आई मीन क्विकली तो क्या ही कह सकते हैं, बट एज कंपेयर टू दुनिया में जब भी वैक्सीन बने उसके हिसाब से ये वैक्सीन काफी जल्दी हमारे पास आ गया और शुक्र है खुदा का. एब्सोल्युटली. आप बाकी सारे जो वैक्सीन हैं जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जरिए लगते हैं बच्चे लोगों, चिल्ड्रन, एंड एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर हैं, ये सारे वैक्सीन पब्लिक हेल्थ में आने के लिए 20-30 साल लग गया. एंड द चिल्ड्रन आर एडमिनिस्टर्ड दिस वैक्सीन एंड द कम्युनिकेशन देयर हैपेंस मोस्टली with the parents of the children. But ये जो वायरस है नई, एकदम नया बीमारी, SARS-CoV-2 is the name of the virus and the disease is COVID-19, and it has been just 10 or 11 months that we have known the body of the virus, the structure of it. How does it look like? And within that knowledge and within that short time period of having that knowledge, having a vaccine even available at hand is phenomenal. So it's a marvel of the modern day science, I would say, because previously it used to take 20 or 30 years to have a vaccine to be ready in use for market or for public health use. But abhi it's just 10 or 11 months. It's phenomenal. It's phenomenal. Yes, and as you're saying, on the one hand, as the medical community, as people who believe, of course, it is phenomenal. But can you understand the skepticism जो इसके इर्द-गिर्द है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात को ढाल बनाकर कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं ले सकते क्योंकि वैक्सीन को बनाने में 20-30 साल लग जाते हैं, तो ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता है? You are absolutely right. You started by saying that, we were all, hoping for the vaccine, and when it's there for us, we are thinking, could we not wait for a little more time? So that's normal, When we want something, even in our life, very badly, but when that thing is there with us, we become hesitant. I mean, I'm not elaborating on the personal front, but it's there with us. Whenever something is new or whenever an experience is going to happen for the first time in life, we become a bit hesitant. Although we were looking out for it. I mean, we were very much, wanting to have a vaccine. So I would say that this hesitancy that is there, that's quite normal. But getting over it is superlative, and we are capable of doing it. So if we have all the information with us and how was the vaccine developed and what were the considerations in terms of bringing it out for restricted use in emergency situation, if we know about all of these, I think that it would help us to avoid the hesitancy that we have, and we would move ahead. I would say that hesitancy is quite normal because the disease is new, the vaccine has been developed within a very short period of time. But then again, the phase 1 trial, which underlined safety is absolutely safe, Covaxin. And that's why it could move to phase 2. Any vaccine which fails in phase 1 does not move to phase 2. And phase 2 is about immunogenicity. So all these underline that, there is something which is safe, and we need not be, afraid at all about administering it. Doc, मैं इसके विस्तार में तो मैं nitty-gritty में नहीं घुसना चाहूंगी, but I want to ask you, इंडिया का क्या progress रहा है 2020 से लेकर 2021 तक जो आपने देखा है? देखिए, 2020 के बारे में सोचा जाए, जनवरी 30th of January, वही दिन है जिधर हमें पता चला कि इंडिया में प्रेजेंस ऑफ SARS-CoV-2 है, कोविड-19 आ चुके हैं. और उसी टाइम अब मुड़ के देखें तो एक ही लेबोरेटरी थे पुणे में जिधर वो डायग्नोसिस हो सकता था, और अभी आप देख लीजिएगा तो 2500 से ज्यादा है, 2000, more than 2500 और आप घर पे बुला सकते हैं टेस्टिंग.
Exactly. So look at the change that has happened. एक बात हो गई ये, और उसी टाइम देखा जाए तो PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स इक्विपमेंट्स पहनना पड़ता है सैंपल कलेक्शन करते समय या कुछ मरीज को मतलब इलाज करते समय, we used to get them from outside. बाहर से हमें मंगवाना पड़ता था, लेकिन अभी इंडिया में, एंड दिस इज फिनोमिनल, क्योंकि देखिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत कामयाब रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने वो स्वाब बनाई जो जिधर से हम नेजोफेरेंजियल स्वाब सैंपल कलेक्ट करते हैं, PPE बनाते हैं, मास्क बनाते हैं। तो ये सारे जो इन कंट्री हो रहा है, इसी के लिए प्रिपरेशंस थे, लेकिन हम लोग नहीं करते थे क्योंकि जरूरत नहीं थी। दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल। थर्डली, आप इलाज के बारे में सोचिए कि देखिए दो चीज महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई एक बीमारी नया आ जाते हैं तो ये जानकारी जरूरी होता है कि क्या कामयाब रहेंगे, क्या काम करेंगे, कौन सा दवाई दें, और कौन सा दवाई काम नहीं कर रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन तो अभी आ गया, लेकिन वैक्सीन आने से पहले बार बार जो नेशनल सीरो सर्वे जो पूरा देश में हम लोग किए हैं, उसी से पता चला, ठीक है पहले एकदम शुरू में 0.7 मान लीजिए 1%, 100 में एक बंदा को इन्फेक्शन थे, लेकिन जब अगस्त सितंबर में सर्वे हुआ था 7%। सो स्टिल मोस्ट ऑफ द इंडियंस, ज्यादातर इन्फेक्शन फैला नहीं था। तो क्यों? ये प्रिवेंशन इसीलिए संभव हुआ या सफल हुआ कि हम लोग मास्क लगाया था और फिजिकल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस वो कर रहे थे। हैंड हाइजीन के बारे में जो बार बार कहा जाता था, दोहराया जाता था, वो हम लोग पालन करते थे। तो सावधानी जो बरतना चाहिए वो सावधानी हम पालन करते थे, इसीलिए रुकावट आ गया इन्फेक्शन का। और अभी सबसे बड़ी खबर 2021 का है कि उसी का साथ वैक्सीन भी जोड़ गए हैं। So this is like multiple barriers, multiple layers. मैं एक छोटा सा ये बोलना चाहूंगा, शायद आपको भी पता है, जब हम स्कूल में थे यही पढ़ते थे कि आप एक स्टिक ले लेते हैं और उसको आप तोड़ने का कोशिश करते हैं तो टूट जाता है ना, लेकिन आप 4-5 स्टिक लगा लेते हैं एक साथ, उसको तोड़ने का कोशिश करिए और टूटेगा नहीं। Similarly, if you have mask, if you have hand hygiene, if you have physical distancing during social interaction और वैक्सीन, ये 4-5 प्रिवेंशन एक साथ करते हैं तो वो वायरस हमें जितना भी कोशिश करे तोड़ने का, हम तोड़ेंगे, टूटेंगे नहीं। जो सोसाइटी है वो ठीक रहेंगे और वायरस का जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो भी इंटरसेप्टेड हो जाएगा। सो देयर विल बी अ रुकावट, वायरस जो एक से दूसरे की तरफ फैलते हैं, जो इन्फेक्टेड है उसी से ससेप्टेबल बंदा के पास जाते हैं ना, जी एक रुकावट आ जाएगा। Okay, so doctor, is this the same where people have started to talk, अरे herd immunization हो गया है, कोविड कम हो गया है, हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कुछ नहीं होगा? ये जो मुद्दा आपने उठाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ड इम्यूनिटी। सभी को आज तो घर घर में 2-3 लफ्ज आई ही हैं, एक है RT-PCR और है हार्ड इम्यूनिटी। ये सब मतलब आम आदमी का लफ्ज हो गए हैं। तो ये इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये सवाल उठाए हैं। हार्ड इम्यूनिटी उसी टाइम आ गया, हम बोल सकते हैं, जब 70 to 80%, 70 या 80% आदमी सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में 70 या 80% में इन्फेक्शन लग चुका है जी। लेकिन नेशनल सीरो सर्वे का बात मैं जो कर रहा था उसी से पता चला कि 1/4, मान लीजिए 100% 25 बंदों में वो इन्फेक्शन लग गया है। तो ये जो इन्फेक्शन का रेट हमें पता चला, पहले था 0.7% जो मैं बोल रहा था, 1%, उधर से 7% हुआ था। और रिसेंट जो सर्वे हो चुका है उसका अभी तक आंकड़ा पूरा निकल के नहीं आया क्योंकि विश्लेषण चल रहा है, जो एनालिसिस, बट लेस देन 1/4 ऑफ द इंडियंस आर नाउ इन्फेक्टेड विद SARS-CoV-2। मतलब बाकी जो 75 या 75% they are not infected, so they are still vulnerable. So ये हार्ड इम्यूनिटी, इसको हार्ड इम्यूनिटी नहीं कहा जाता। सो हमें सावधानी बरतना चाहिए, और सावधानी बरतते समय हम तो ये हो गया, थक गए हैं कि कितना दिन तक मास्क लगा के चले, हम मॉल पे नहीं जा सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो टाइम है ये अब क्रिकेट मैच के तौर पे सोचा, क्योंकि अभी तो इंडिया का एक बहुत अच्छा क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को, yes sir. It's amazing that we can talk about cricket in the middle of the vaccine, but it's important. Yes, exactly. So cricket मैच में जैसे कि
जब आप जीत का एकदम नजदीक आ चुके हैं, उसी टाइम आपको एकदम ढिलाई नहीं देना चाहिए। तो अभी वैक्सीन आ गए हैं तो आप अच्छा खेल रहे हो, ये इनिंग्स आपको जीतने का चांस है, ट्रॉफी आपको मिलने का है, लेकिन इसी टाइम आप ढिलाई दे देते हैं ना, तब आपको गया हाथ से मैच। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, यस, herd immunity has not come to India because it's just 20 to 25% of the Indians who have been infected, and antibody test करके वही पता चला, national sero survey का मैं बात कर रहा था। So like 75% are still not infected. That means they are vulnerable ना, उनको संक्रमण हो सकते हैं, उसमें बीमारी आ सकते हैं। तो इसीलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उसमें आपको अभी 4 सोल्जर्स आ गया, सोल्जर्स जो हैं, these are all soldiers of prevention, है ना? जी जी। ये वैक्सीन में है क्या, क्या बना है इस वैक्सीन में? द रीजन आई आल्सो आस्क डॉक्टर, वन इज ऑफ कोर्स टू फिगर आउट बिकॉज़ हम कितने वक्त से जूझ रहे थे ना इसके साथ। द सेकंड थिंग इज बिकॉज़ लोग आर ट्राइंग टू मेक द वैक्सीन एट होम, गूगल कर रहे हैं कि कैसे बनाए घर पे। मैंने कहा हैंड सैनिटाइजर थोड़ी है। अच्छा, कभी कभी आमने सामने मिलता है तो मैं आपको बोलूंगा, मैं जो चिट्ठी मिलता है मेरे को पूरा इंडिया से, समटाइम्स आई कीप ऑन थिंकिंग कि इंडिया इज फुल ऑफ इन्वेंटर्स, लेकिन आप बोल रहा है किचन में हम बना लेंगे वैक्सीन, ऐसे बात भी आता है। और वो बोलते हैं आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देता तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट कर दूंगा। Yes, because I am not, paying enough attention. Super, doctor. Thank you for giving me a class in science and ethics both आज की सुबह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you very much for taking out your precious time. ये आपकी बात जो है लाखों लोगों तक इस मीडियम के जरिए पहुंचेगी। Any last words जो आप सुनने वालों को, देखने वालों को बोलना चाहेंगे? I will say that remove your fear, go ahead and embrace COVID-19 vaccine. Time to vaccinate or time to take a vaccine is now. वक्त अभी है वैक्सीन लेने का। सो डर से दूर रहिए, डर को हटाइए और कोविड-19 को अपनाइए मत, वैक्सीन अपनाइए। That's a good line. Doc, before you go, आप तो जानते होंगे on Red FM, the reason we're also doing this is we've started something called Nation for Vaccination on Red FM 93.5 that we're all heading. Would you like to say something about that? I think it's a fantastic public health step that you have taken, and a great service for the nation. So kudos to all of you. Thank you so much, doctor. I'm sure you have a busy day ahead. What is your first order of the day? अब यहाँ से मुझसे बात करने के बाद आज आप क्या-क्या करने वाले हैं? ये जो सबसे कठिन सवाल ये रहा। I leave second by second, so I really don't know. And while I was talking and it was coming to the end of the discussion, I saw another colleague of mine coming in and smiling, meaning there is something up there for me waiting. Second by second. अगर good news है तो आप मुझे जरूर बताइएगा. I'm going to WhatsApp you. जरूर. When you take the vaccine, मुझे वो selfie जरूर भेजिएगा that we discussed. एकदम बरोबर. And when I do it, I will do the same with you. Okay. Dr. Samiran Panda. Have a wonderful day ahead. Thank you, doctor. You do too. And thank you for talking to us about the vaccine. Bye. Lots of love. God bless. Bye. Bye. 93.5 Red FM. बजाते रहो.